مسیح کے بابرکت جلالی قدوس اور فتح مند نام میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ سب کو سلام کرتی ہوں کہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کا پیار نرالا ہے۔ پاک خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں سارا دن سنبھالا اور ہماری حفاظت کی، نگہبانی کی، اور جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور زندوں کی زمین پر رکھا کہ ہم خدا کے نام کی تعریف کر سکیں، اس کے نام کی وڈیائی کر سکیں، کیونکہ خداوند بے حد تمجید، ستائش اور بزرگی کے لائق ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم خداوند کے آگے جھکیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پاک خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری اس محبت کے لیے، تیری اس وفاداریوں کے لیے کہ تو ہر پل ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور پاک خدا، تو نے سارا دن ہماری حفاظت کی، نگہبانی کی، اور خداوند تو نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ہمیں پاک خدا تو آسودہ کرتا ہے۔ اس بات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور خداوند، آج شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ ہونا، آج کا پرستش کرنا، اور خداوند آج کا کلام کا بیج بویا جانا آج میری زندگی کے لیے اور دیکھنے والوں اور سننے والوں کی زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ اور خداوند، آج تیرے لوگ کثرت کی برکت پائیں اور سارا عزت اور سارا آنر تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو دیں، مانگتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا نام ہماری زندگی کے اندر جلال پاتا ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا خدا کو پسند آتا ہے، تو اس کا جلال ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ آئیں ہم خداوند کے آگے جھکیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند، آج تم مجھ سے بول، آج تم مجھ سے کلام کر، آج جو تیرے کلام کا بیج بویا جائے، آج وہ میری زندگی کے لیے ہو، آج وہ ایک ایک زندگی کے لیے ہو، کیونکہ خدا جب بولتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، خدا جب بولتا ہے تو بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، بیماریاں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج میرا ایمان ہے کہ جب خدا کا بندہ خدا کے کلام کو آپ تک لے کے آئے گا تو آپ یقیناً بہت سی برکتوں کو ریسیو کریں گے۔ آئیں ہم خداوند کے آگے جھکیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پاک خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب ہم بول رہے تھے تو پاک خداوند تو سن رہا تھا، جب کہ تو بولنے کو ہے تو پاک خدا ہم تیری آواز کو سنیں، جو شیریں ہے، جو شہد سے بھی میٹھی ہے، جو پاک خدا ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ آج پاک خداوند، جب تیرے کلام کا بیج بویا جائے تو خداوند تیرے لوگ آج کثرت کی برکت پائیں۔ اور پاک خدا، میں تیرے بندہ کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں، تیرا پاک روح تیرے بیٹے کا زور بنے، اور خداوند آج وہ نہیں بولے بلکہ تیرا پاک روح اس میں ہو کر بولے، اور خداوند تیرے لوگ آج کثرت کی برکت پائیں اور سارا عزت اور سارا آنر تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو دیتے رہیں۔ مانگتی ہوں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آج ہمارے ساتھ ایونجلسٹ سلاس ہیں، تو آج وہ خدا کی خدمت کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ آپ بہت سی برکتوں کو ریسیو کریں گے۔ آئے ہم ان کو ویلکم کریں۔ ہاللیلویا۔ مسیح میں تمام عزیزوں کو میری طرف سے سلام کو قبول ہو۔ میں سسٹر فوزیہ کا خداوند کے حضور شکر گزار ہوں کہ خداوند نے انہیں برکت دی، اور خداوند نے انہیں اس لائق کیا کہ خداوند کی منہ کی باتیں وہ آپ تک ہر روز شیئر کرتی ہیں، اور خداوند کے وہ بھید، وہ باتیں آپ تک پہنچاتی ہیں، اور آپ لوگ یقینی طور پر اس برکت کو، اس بلیسنگ کو ریسیو کرتے ہو۔ آئے ہم چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو ہم سے بات کر، کیونکہ جب خدا بولتا ہے تو ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، جب خدا بولتا ہے تو پہاڑ لرزا جاتے ہیں، جب خدا بولتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ وہ جلال کا بادشاہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے پاک روح خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں رکھوں، خدایا پاک روح میں نہیں بلکہ تو مجھ میں سے بول، وہ باتیں وہ
वो काशफात मुझ पर खोल ताकि मैं तेरे लोगों को तेरे कलाम की बातें बता सकूं, वो भेद मैं तेरे वसीला से लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद पाकरू तू मुझे इस्तेमाल कर, सुनने वालों को बरकत देना पाकरू। खुदावंद उनके सख्त दिल तेरे बेटे यीशु के नाम से नरम हो ताकि तेरे कलाम को सुने समझें और अपनी जिंदगी में उतारें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हमने अभी ये गीत गाया कि मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीजो, ये कितना खूबसूरत गीत है कि खुदा से अगर हम दिल को लगाते हैं, खुदा का डर, खुदा का खौफ अगर हमारी जिंदगियों में होता है तो हमारा उठना बैठना चलना फिरना हमारे जहनों में ये होता है कि हम गुनाह ना करें। अगर हम बुरी बात सोचेंगे तो खुदा हमें देख रहा है, अगर हम बुरी बात करेंगे तो खुदा हमें सुनता है। जब हमारे दिल में डर होगा तो यकीनी तौर पर हम गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद का खौफ, खुदावंद का डर हिकमत का शुरू है। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम से देखेंगे ज़बूर 112 उसकी पहली वर्ष को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है कि खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। खुदावंद के पाक कलाम पर पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद की हम्द करो। मेरे अजीजों, खुदावंद ने इंसान को इसलिए बनाया, इसलिए पैदा किया कि वो उसकी हम्द, उसकी सताइश करे, उसके आगे झुके, उसकी प्रस्तिश करे, उसे बढ़ाए, उसकी तमजीद करे, क्योंकि खुदा का इंसान को बनाने का मकसद ही था कि इंसान उसकी हम्द सताइश करे। क्योंकि इससे पहले कि खुदा इंसान को बनाता, हजारों करोड़ों फरिश्ते उसके हजूर उसे कदूस कदूस कहकर पुकारते थे और अब भी पुकारते हैं, अब भी उसे हर वक्त कदूस कदूस कहकर पुकारते हैं। तो खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया कि खुदा इंसान जो है वो खुदा की हम्द सताइश करे, उसके आगे झुके, उसकी हम्द सताइश करे। खुदा इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। खुदा ने कहा कि मैंने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद की हम्द करना हम पर लाजिम है, क्योंकि खुदा ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम सब उसकी हम्द सताइश करें। आगे वो कहता है कि मुबारक है वो आदमी, मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद से डरता है, जिसके दिल में खुदा का डर है, खुदा का खौफ है। मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में खुदावंद का डर होगा तो हम गुनाह नहीं करेंगे। हम खुदा के हजूर उस बुरी चीज को, बुरी ख्वाहिश को नहीं रखेंगे, क्योंकि जब खुदा का डर हमारी जिंदगियों में होगा, जब खुदा का डर हमारे जहनों में होगा तो मेरे अजीजों, हम बुरी बात कहने से डरेंगे। हम इस बात पर हमारा होगा कि हम ये बुरी बात ना कहें, ये बुरा ना सोचें, क्योंकि खुदा का डर जो है वो हमें गुनाह से महफूज रखता है। खुदा का डर हमें उस बदी से, उस बनाई से जो शैतान हमारे जहनों में डालता है, हमारे घरों में डालता है, हमारे ख़ानदानों में वो गुनाह को लेकर आता है। जब खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगियों में होगा, जब खुदा का खौफ हमारे दिलों में होगा तो मेरे अजीज़ों, हम गुनाह से डरेंगे, बदी से डरेंगे, किनारा करेंगे, कहीं खुदा हमसे नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि खुदा ने वाज़िह तौर पर लिखा है कि मैंने तुम्हारी शबीह अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो हर वक्त हमें देखता है, उसकी आंख हर वक्त हमें जांचती है, वो हमें हर वक्त देखता है, क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा है। जब मसीह यीशु खुदावंद ने कह दिया है कि मैंने तुम्हारी शबीह अपनी हथेली पर खोद रखी है, तो मेरे अजीजों, वो हमें देखता है। हमने उस बुरे गुनाह से, उस बुरी रवश से दूर रहना है जिससे
ہم خدا کے گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کے گناہگار ہوں گے تو میرے عزیزو ہمارے گھروں میں بیماری آئے گی، ہمارے گھروں میں پریشانی آئے گی، ہمارے گھروں میں بیماری، دکھ، تکلیف اور بدی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی، ہماری اولاد نافرمان ہو جائے گی، ہمارا روزی میں کھانے پینے کی چیزوں میں بلیسنگ نہیں ہوگی، ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم خدا سے نہیں ڈریں گے تو میری عزیزو شیطان ہماری زندگیوں کو برباد کرتا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھل جو خدا ہماری زندگی میں لاتا ہے وہ اس پھل کو ہماری زندگی سے برباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جو خدا نے صرف جو بنائی ہے دوزخ وہ صرف ابلیس کے لیے تھی، اس کی یہ کوشش ہے کہ اس دوزخ میں ہمیشہ کی آگ میں اکیلا نہ جلوں، وہ انسان جو خدا نے بنائے ہیں وہ بھی اس آگ میں جلیں، وہ بھی اس آگ میں مریں اور ہمیشہ کی آگ میں جلتے رہیں۔ اس لیے وہ ہمارے پھل کو، ہمارے گھروں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو خدا کے ساتھ سچائی سے، ایمانداری سے چلتے رہتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی پر چلو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ میرے عزیزو وہ سچائی جو خداوند ہماری زندگیوں میں لانا چاہتا ہے، خداوند ہمارے گھروں میں لانا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کبھی بھی ہمیں تشنا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی بھی ہمیں بے کس بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ میرے عزیزو جس طرح خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا، ٹھنڈے وقتوں میں خدا ان کے پاس آیا کرتا تھا، ان سے باتیں کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا وہ، کیونکہ خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ میں آج کل بلکہ اب تک یکساں ہوں۔ وہی خدا وہ آج بھی ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ آج بھی ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے میرے عزیزو، لیکن ہمارے پاس اس نجات دہندہ کے لیے وقت نہیں ہے، اس خدائے قادر مطلق جلالی بادشاہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوسری دنیاوی چیزوں میں ہم پھنسے رہتے ہیں، وہ دنیاوی کاموں میں ہم اس میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس خداوند کے لیے جس نے ہمیں اولاد دی، جس نے ہمیں صحت، تندرستی، سلامتی دی، ایون کہ آج جو سانسیں ہم لے رہے ہیں یہ اس کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اس کو جٹلا کر اپنی عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اپنے ان کاموں میں جو دنیاوی ہیں ان میں پھنس کر خدا سے دور رہتے ہیں۔ میرے عزیزو خدا ہم سے میل ملاپ کرنا چاہتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ آگے لکھا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ او ہاللویا! مسرور رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کھو جانا، وہ کام جو ہم بڑی جد و جہد سے، بڑی اس مصروفیت کی وجہ سے کام کو کرتے ہیں، بالکل کھو جاتے ہیں۔ مسرور رہنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کام میں دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، دنیا کو ہٹا کر اس چیز پر فوکس کرنا۔ تو میرے عزیزو ہمیں خدا کہ ان سارے حکموں میں خوب مسرور رہنا ہے۔ اس کے حکم کو اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، اس کے حکم یہی ہیں کہ تم میری عبادت کرو۔ میرے عزیزو اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی پرابلم ہمارے بیچ میں روٹی کی، پانی کی ہے، ہماری خوراک کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم کھانے کے لیے کہاں سے لائیں گے، اس مہنگائی کے دور میں ہم اپنی اولاد کو کیا دیں گے، کہاں سے کھانے کی، صبح شام دوپہر کے لیے یہ کھانے کی چیزیں کہاں سے مہیا کریں۔ تو میرے عزیزو وہ ایک حکم ماننے سے یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے آ جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جب ہم اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، اسے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں، اس کے آگے اپنی ہر پریشانی، دکھ، تکلیف رکھ دیتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں برکت دیتا ہے، ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور اس کے حکموں میں ہم نے خوب مسرور رہنا ہے، کیونکہ جب ہم اس کے حکموں میں مسرور رہیں گے تو دنیاوی چیزوں کی طرف ہماری توجہ
नहीं होगी, शैतान हमारी ज़िंदगियों में नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है वो दरवाजे पर दबका बैठा है। मेरे अजीज़ों, वो हमारे फलों को तबाह करना चाहता है। हमारे फल देखने में तो हमारी औलाद है, वो हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करना चाहता है। मेरे अजीज़ों, हमने खुदावंद के हुक्मों को मानना है, खुदावंद से डरना है, ताकि हम अपनी नस्लों को, अपने ख़ानदान को, अपने घरानों को खुदावंद की हजूरी में लेकर आएं, क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि हर एक घराने में से एक इंडिविजुअल इंसान ही सिर्फ खुदा की बादशाहत में जाए। खुदा ये चाहता है कि पूरे का पूरा ख़ानदान खुदावंद की उस बादशाहत में दाखिल हो। तो मेरे अजीज़ों, हमने अपने घरानों को, अपनी औलाद को, अपने अजीज़ो कारब को खुदावंद की राहों पर लेकर आना है, क्योंकि खुदा ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम सब उसकी परस्तिश करें। ये मेरे अजीज़ों, कोई इंडिविजुअल काम वो पास्टर साहब का नहीं है, ये हर एक बशर के लिए ये खुदा का काम है कि हर एक बशर एक दूसरे को खुदा के कलाम की बातें सिखाए, वो खुशखबरी को सुनाए, क्योंकि खुदा की खुशखबरी यही है कि उसका बेटा यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने हमारे लिए कफारा दिया। हम गुनाहगार थे, वो बेऐब था, उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर ले लिया, हमारी बदियों को, हमारी बदकारियों को सलीब पर लाद कर उसने हमारे गुनाहों को मिटा दिया, हमारी आने वाली नस्लों के गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। वो निजात दहिंदा यही चाहता है कि हम उसमें मसरूर रहें, उसके हुक्मों को मानें। और मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम आता है। ये मेरे अजीज़ों, खुदा का पाक कलाम खुदा ही है, क्योंकि जब यूहन्ना का पहला बाब हम देखते हैं, लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। मेरे अजीज़ों, ये खुदा का कलाम खुदा ही है। हमने जब इसको पढ़ना है तो खुदा से बातें कर रहे होते हैं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे होते हैं तो खुदा से हमारी मुलाकात होती है। हमने दिल खुदा के कलाम से लगाना है, हमने अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को लेना है, क्योंकि जब खुदा का कलाम हमारे अंदर आएगा, खुदा के मुंह की बातें हमारे अंदर आएंगी, तो अंदर से बदी जाती रहेगी, गुनाह जाता रहेगा, बदकारी जाती रहेगी, हर किस्म की बदफेली हमारी जिंदगी से जाती रहेगी। तो मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे आप खुदा का पाक कलाम पढ़ोगे, खुदा के मुंह की बातें आपकी जिंदगी में आएंगी। और ये खुदा का पाक कलाम एक आईना है, आईना हमें दिखाता है। जिस तरह हम शीशे में अपनी छवि को देखते हैं कि आया कहीं से बिगड़ी तो नहीं है, कहीं से गलत तो नहीं लग रहे, इसी तरह ये खुदा का पाक कलाम है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं, ये खुदा का पाक कलाम हमारी बुराइयों को हमारे सामने ले आता है। ओ, जब हम अपनी बुराइयों को दूर करते हैं तो यही कलाम हमारे लेवल को बढ़ा देता है, और अगर हमें अच्छाइयाँ हैं तो ये कलाम भी हमारी अच्छाइयों को बढ़ाता रहता है। ये जिंदा कलाम जो मोतबर है, ये हमारी जिंदगियों को बदलता रहता है, क्योंकि खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है। जब खुदावंद के खौफ में हम जिंदगी को गुजारते हैं तो मेरे अजीजों, हम गुनाह नहीं करते। और वाज़िह तौर पर लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हम उस गुनाह कि मौत में नहीं मरना चाहते तो आज हमारे पास वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ना शुरू करें, उसके मुंह की बातों को सीखना शुरू करें, क्योंकि जब जब हम उसके मुंह की बातों को सीखेंगे, उसके पाक कलाम को पढ़ेंगे, आज से मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा, मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगी, ताकि खुदावंद मेरा घराना बचे, मेरी ज़िंदगी बचे, मेरे घराने बचे। मैं तेरे कलाम में मसरूर हूँगा, मैं दुनियावी चीज़ों को तर्क करके तेरे साथ चलूँगा। आज हम वादा करेंगे कि खुदावंद तूने मुझे ये नया साल दिया, मैं इस नए साल में खुदावंद तुझसे रफ़ाकत रखूँगा, तुझसे मेल मिलाप रखूँगा, तुझसे अपनी बातें शेयर किया करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, हम दुनियावी लोगों के साथ अपने दुख दर्द खोलते हैं, अपनी परेशानियां मुसीबतें दूसरे लोगों को बताते हैं, और लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वो हमें ठट्ठों में उड़ाते हैं, वो हमारे मजाक करते हैं, लेकिन उस जिंदा खुदा के आगे हर एक दुख को, हर एक परेशानी को हमने रखना है, ताकि वो हमारी जिंदगियों में काम करे, क्योंकि वो कभी भी देकर नहीं पछताता। वो हमें बरकतों से भरना चाहता है, वो हमारी नस्लों को बदलना चाहता है, वो हमारे खानदानों को बदलना चाहता है। आए हम उस जिंदा खुदा के आगे झुकें और इकरार
اقرار کریں کہ خداوند مجھ میں بدی تھی, مجھ میں برائی تھی, آج میں اپنے اندر سے ساری برائیوں کو ختم کرتا ہوں اور تیرے بیٹے یسوع کی صلیب کے نیچے آتا ہوں جس نے میرے لیے کفارہ دیا, میرے گھرانوں کے لیے کفارہ دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. او جلالی اصلی ابدی بادشاہ, آسمان کے خالق اور مالک, زندہ پاک یہوہ خدا, میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں خداوند خدا ان سب لوگوں کو تیرے حضور میں رکھتا ہوں. میں ان کے گھروں سے ہر قسم کی شرمندگی کو, لعنت کو, قرض کو, شیطان کے تمام منصوبوں کو یسوع کے نام سے دور کرتا ہوں. خداوند ان کی زندگیاں تیری طرف پھریں, ان کے سخت دل نرم ہو جائیں, ان کی خداوند خدا بنجر زمین سہراب ہو جائے اور تیری طرف رجوع لائیں. ان کی نسلیں بدل جائیں, ان کے خاندان خداوند تیری طرف نگور آئیں اور خداوند تجھے قبول کریں. خداوند ان کے دلوں میں تیرا ڈر اور تیرا خوف رہے, کیونکہ تیرا ڈر اور خوف رہے گا تو گناہ نہیں کریں گے, بدی نہیں کریں گے. خداوند ان کی زندگیوں کو بدل. میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ان سب دیکھنے والوں کی زندگیوں میں خداوند تیری بلیسنگ کو مانگتا ہوں. ہر قسم کی لعنت, کرس, شرمندگی ان سب کے ذہنوں سے, دلوں سے, گھروں سے تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جائے اور خداوند تیری قدرت ان کی زندگیوں میں کام کرے. ان سب کو برکت دینا مانگتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین. خداوند کے بندہ نے فرمایا, کلام میں لکھا ہے کہ تو اس میں مسرور ہے, وہ تیرے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرے گا. خدا ہمارے دل کی بھی مرادوں کو پورا کرتا ہے جب ہم اس میں مسرور رہتے ہیں, اس کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں. تو آج جن کی ریکویسٹیں ہیں تو وہ اپنی ریکویسٹیں بھیجنا شروع کرے اور خدا کا بندہ آج ان کے لیے دعا بھی کرے گا. اور میرا ایمان ہے کہ بہت سے جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں گے, بہت سے جو پریشان ہیں آج ان کے حالات بدل جائیں گے. آئیں خداوند کے کلام کی شکر گزاری کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. پاک روح تیری شکر گزاری, تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری اس محبت کے لیے, تیری اس وفاداریوں کے لیے کہ تو ہر پل ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو کبھی بھی اپنے لوگوں سے دستبردار نہیں ہوتا, کبھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی اپنے لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا, بلکہ تیرا پاک ہاتھ دن رات تیرے لوگوں پر بڑا رہتا ہے. آج جو لوگ مایوس ہیں, آج پاک خدا تیرا ہاتھ میں ایک ایک زندگی پار چاہتی ہوں. پاک خدا ہر طرح کی مایوسی جائے, ہر طرح کی بیماریاں جن کے بدن کے اندر ٹیومر ہے, یسوع مسیح کے نام سے ان کے بدنوں سے جاتا رہے اور خداوند تیرے لوگ مکمل شفا پائیں, کیونکہ تیرے لہو میں شفا ہے. تیرے مار کھانے سے پاک خدا تیرے لوگ شفا پاتے ہیں. آج تیرا ہاتھ ایک ایک زندگی پر بڑھے اور پاک خدا تیرے لوگ مکمل شفا پائیں, مکمل رہائی پائیں اور خداوند سارا جلال تجھے دیں, سارا آنر تجھے دیں, کیونکہ تو ہی پاک خدا نہایت تمجید کے لائق ہے, ستائش کے لائق ہے. آج جن کے بدن کے اندر رسولیاں ہیں, گلٹیاں ہیں, ہر طرح کی رسولیاں اور گلٹیاں یسوع مسیح کے نام سے تیرے پاک لہو سے رموو کی جائیں. پاک روح چھو, پاک روح چھو, اپنے لوگوں کو چھو اور ہیل کر, بی ہیل ان دا نیم آف جیسس. پاک روح چھو, اپنے لوگوں کو چھو اور مکمل شفا دے. آج تیرا جلال ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو جائے. اور پاک خدا جو بے اولاد ہیں, آج میں تیرا ہاتھ ایک ایک پاک خدا بیٹی پر چاہتی ہوں. پاک خدا ہر طرح کی بدن کی کمزوری تیرے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے اور خداوند تیری بیٹیاں اولاد کی برکت کو رسیو کریں, کیونکہ خداوند یہ تیری طرف سے میراث ہے. آج پاک خدا کوئی بیٹی مایوس نہ رہے, کوئی بیٹی پریشان نہ رہے, بلکہ تیرا جلالی ہاتھ آج ایک ایک بیٹی پر بڑھے اور خداوند تیری بیٹیاں اولاد کی برکت کو رسیو کریں اور خداوند تیرے نام کو جلال دیں, تیرے نام کی شکر گزاری کریں اور سارا عزت اور سارا آنر تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو دیں. مانگتی ہوں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین. سسٹر الپنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری جاب کے لیے دعا کریں, خدا اپنی ہاتھوں میں سیکھ لے. ٹھیک ہے بھائی اصلاح ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہمارے پاس ریکویسٹ ایک آئی ہے, سسٹر الپنا ہے, ان کے پاس جاب نہیں ہے, تو ہم
खुदा के पाकरू से कहेंगे और खुदावंद से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करे। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे। जलाल के बादशाह यीशु नासरी खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। मैं खुदावंद सिस्टर अल्पना को तेरे हजूर में रखता हूँ। मैं हर किस्म की उसकी जॉब की रुकावट को, जुओं को, बंधन को यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ। और राइट नो हर किस्म के जुए बंधन यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। और खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ तू को कि खुदावंद खुदा रोजगार मुहैया कर, क्योंकि तू यहोवा यरी है और हमारा यकीन ईमान तुझ जिंदा खुदा पर है, क्योंकि तू मुहैया करेगा। मेरी दुआ को खुदावंद तू सुन और कबूल कर। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने दुआ को सुना और उस बेटी के लिए जॉब को मुहैया कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिस्टर शमीम अख्तर है, इन्होंने कहा कि मेरी एग्जाम प्रोसेस के लिए दुआ करें। एग्जाम्स इनके कौन से हैं, क्या एग्जाम्स हम सिस्टर शमीम है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके एग्ज़ाम है, कोई हम उनके लिए भी दरख्वास्त करेंगे कि खुदावंद उनके जहन को खोल ताकि वो लायक तौर से एग्ज़ाम कर सके और खुदा उन्हें बरकत दे। हालेलुया। ऐ जलाल के बादशाह यीशु नासरी, मैं इस बेटी को तेरे हजूर में लाता हूँ। खुदावंद इस बेटी के जहन को खोल ताकि लायक तौर से ये स्टडी करे, लायक तौर से पढ़े, क्योंकि खुदावंद तेरा पाकरू ही इस जहन को खोलता है। जब जहन तू खोलता है तो हर एक चीज़ ऐसा तौर से होना शुरू हो जाती है। मैं यीशु के नाम से इस बेटी का बंद जहन खोलता हूँ, बंद जहन यीशु के नाम से खुले और खुदावंद इस बेटी पर रहम कर। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ब्रदर राजा है, इन्होंने कहा है कि मेरे ब्लड प्रेशर के लिए दुआ करें, वो काफ़ी ज़्यादा हालेलुया। मैं भाई राजा के लिए खुदावंद तेरे आगे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई कि जो भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीमारी है उसके बदन में, ब्लड में जो भी बीमारी है, वो खुदावंद खुदा वो सारी बीमारी राइट नो यीशु के नाम से जाती रहे। मैं इस बीमारी को, इस डेविल को यीशु के नाम से इसके बदन से आउट करता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं। सिस्टर नीलम है, उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम है, उनके लिए दुआ। स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है बहन के लिए हम दरख्वास्त करेंगे कि खुदावंद उसकी सारी स्किन की प्रॉब्लम को, मेरे अजीज़ों जो भी बीमारी है वो बीमारी शैतान लेकर आता है, क्योंकि खुदा किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि जो खुदा ने इंसान को बनाया है वो बीमारी में मरे, परेशानी में मरे, वो दुख में मरे, तकलीफ़ में मरे। खुदा कभी भी नहीं चाहता। ये हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, अपनी ही खुताइयाँ होती हैं जो हम खुदा से दूर होकर शैतान के जुंगलों में फंस जाते हैं, दुनियावी चीज़ों में फंस कर बीमारियों को अपने ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, शैतान को लीगली कोई राइट नहीं कि वो किसी भी इंसान पर अटैक कर सके। वो तभी हमारी ज़िंदगी में आता है जब हम उसको अलाउ करते हैं। हम अलाउ इस सूरत में करते हैं कि हम खुदा को छोड़कर शैतान के पीछे आ जाते हैं, शैतान की बातों पर लगकर गुनाह कर लेते हैं, बदी कर लेते हैं। तो जब हम बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो शैतान लीगली राइट रखता है कि वो हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सके। हमने अपनी ज़िंदगी से शैतान को निकालना है। शैतान वो है जो बदी हम करते हैं, बुराई करते हैं, बुरी सोचें रखते हैं, बुरे ख्याल रखते हैं, उन सारी रवशों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। हालेलुया। जलाल के बादशाह में इस बहन की इस सारी स्किन डिजीज़ को, इस सारी बीमारी को जो शैतान इसकी ज़िंदगी में लेकर आया है, उस सारी बीमारी को, उस सारी स्किन डिजीज़ को राइट नो यीशु के नाम से दूर करता हूँ। खुदावंद तेरी हीलिंग इस बदन में रिलीज हो और ये बदन तेरे नाम की गवाही दे के तेरे बेटे यीशु के लहू से ये धुल चुकी है। मांगते हैं उस यीशु के नाम से, आमीन। ब्रदर संतोष है, इन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। और ब्रदर राजू है, इन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो उनके लिए दुआ। कर्ज या कर्ज कर्ज लोन। लोन। हालेलुया। मैं इन दोनों घरों के लिए यहोवा पाक खुदा तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ।
मैं यीशु के नाम से खुदावंद खुदा इन घरानों को तेरे हजूर में लाता हूँ। खुदावंद खुदा इन घरानों की गलतियों को, खताओं को, गुनाह को मुआफ़ कर, और खुदावंद इन्हें अपने बेटे यीशु के लहू से धो दे। हर किस्म का कर्ज, खुदावंद रुपए पैसे की कमी इनकी ज़िंदगियों में जाती रहे, और दूसरे भाई की जो वो फैमिली में परेशानी है, मुसीबत है, वो दुख तकलीफ है, वो सब यीशु के नाम से जाए। मैं शैतान को इनके घरों से यीशु के नाम से दूर करता हूँ। यीशु के नाम से डेविल, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, छोड़ इन घरों को, राइट नो कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से आउट मांगते हैं हम यीशु के नाम से, आमीन। ब्रदर कद्दू हैं जो कि इंडिया से हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पास मास्टर की डिग्री है लेकिन आज तक मुझे गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल पा रही। मेरे भाई, अगर जॉब आपको वो नहीं मिली तो इसमें भी खुदा की मर्जी होती है। कभी हमने ये नहीं जानने की कोशिश की कि खुदा क्या चाहता है। हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को ही आगे रखते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो रहा तो उसमें खुदा की भी कोई होता है कि खुदा का प्लान कुछ और होता है। हमने खुदा के आगे झुकना है, खुदा के आगे अपनी रिक्वेस्टें रखनी है और खुदा से पूछना है, क्योंकि खुदा बात करता है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात करता है। खुदा ख्वाब के ज़रिया से, रोया के ज़रिया से बताता है, लेकिन हम उसकी बात को सुनते नहीं। हम दुआ करते हैं कि जलाल के बादशाह इस भाई की तमाम खुदावंद खुदा उस जॉब्स की रुकावट्स को यीशु के नाम से खुदावंद मैं कैंसिल करता हूँ, और खुदावंद खुदा इसको सरकारी जॉब दे। खुदावंद खुदा इसकी दिल की डिज़ाइर ये है कि ये खुदावंद सरकारी जॉब पर लगे। खुदावंद यीशु के नाम से तू इसे जॉब मुहैया कर, क्योंकि खुदावंद तू यहोवा यरी है और तू मुहैया करता है। अपने बेटे पर रहम कर और खुदावंद यीशु के नाम से इसे जॉब मुहैया कर। मांगते हम यीशु के नाम से, आमीन। सिस्टर सुरेश है, इन्होंने कहा है कि पापा के लिए प्रार्थना करते, वो हॉस्पिटल में है, उनकी चेस्ट में पानी। आइए अजीज़ों, हम दुआ करेंगे कि इस बहन के वालिद के लिए उनकी जिस्म में पानी है। तो खुदा जो दिलों को बनाने वाला, इंसानों को बनाने वाला, गुर्दों को न्याय करने वाला, हर एक चीज़ को बनाने वाला, उस जिंदा खुदा से हम कहेंगे कि वो अपने जलाल को जाहिर करे, क्योंकि वो जिंदा खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो जलाली बादशाह यीशु नासरी, मैं खुदावंद खुदा इस भाई को तेरे हजूर में रखता हूँ। मैं हर किस्म की खुदावंद खुदा उस पानी को यीशु के नाम से कमाल के बदन में रिलीज करता हूँ। राइट नो वो बदन हील हो, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से, आमीन। सिस्टर जाहिदा है, उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली के लिए दुआ करें कि खुदा उनको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जलाल के बादशाह, मैं इस बहन के घराने को तेरे हुजूर में लाता हूँ। खुदावंद उस बहन के दिल में है कि उसका घराना भी तेरे हुजूर में आए, उसका घराना भी बचे, उसका घराना भी निजात पाए। खुदावंद खुदा, मैं इस बहन को तेरे हुजूर में रखता हूँ। खुदावंद इस बहन को और ज़्यादा मजबूत कर, अपने जलाल में बढ़ा, और खुदावंद खुदा इसका घराना इसके वसीला से बच सके, इसके वसीला से इसका घराना बच सके। मैं उन सारे बंदरों को, उन सारी रुकावटों को जो खुदावंद इसके घराने को तेरे हुजूर में आने से बढ़ती हैं, वो लानतों को, वो कर्सिस को, वो डेविल को यीशु के नाम से दूर करता हूं, ताकि ये घराना तुझ में नजात पाए, तुझ में कायम रहे, और ये पूरा के पूरा घराना तेरी जलाल में बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम से खुदावंद इनको अपने हुजूर में कायम रख। मांगते हम यीशु के नाम से, आमीन। सिस्टर यह है, इन्होंने कहा है मेरे ब्रदर के लिए दुआ करें, और इसके साथ ब्रदर अरशद है, उन्होंने कहा है कि मेरे बिजनेस के लिए दुआ। हालेलुया। सिस्टर के लिए खुदा मैं तेरे हुजूर में रखता हूँ। वो जो अपने भाई के लिए खुदा परेशान है, वो खुदा वो उसकी सारी परेशानी मुसीबत यीशु के नाम से जाए। खुदावंद शैतान
घरों को तबाह करता है, लेकिन तेरा जलाल, तूने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। खुदावंद अपने फजल को इनके घरानों पर उंडेल ताकि ये घराने बचें। खुदावंद खुदा, मैं उस भाई को तेरे हुजूर में रखता हूँ जिसके बिजनेस में प्रॉब्लम है। ओ खुदावंद खुदा, वो सारा बिजनेस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए। शैतान उसके बिजनेस से, उसकी जिंदगियों से यीशु के नाम से रिमूव हो। खुदावंद खुदा, उसके फ्रेंड जो तेरी तरफ से नहीं है वो यीशु के नाम से उसकी खुदावंद बिजनेस में से जाते रहें ताकि खुदावंद उसका बिजनेस बढ़े। यीशु के नाम से उस भाई को बरकत देना, ब्लेस करना मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। ब्रदर कासू हैं, इन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए दुआ करें, और इसके साथ ब्रदर हिक हैं, इन्होंने कहा है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए दुआ करें। हालेलुया। हम उस भाई को खुदावंद के हुजूर में रखते हैं। उस भाई को उसे कहें कि वो अपने मुंह से इकरार करे कि खुदावंद, मैं अपने आप को, अपने घराने को तेरे बेटे यीशु के ज़िंदा लहू की प्रोटेक्शन में देता हूँ, क्योंकि जब हम उस ज़िंदा लहू की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं तो मेरे अजीज़ों, शैतान हमारे पास नहीं आ सकता, दुनियावी वो कुछ चीज़ें हमारी पास नहीं आ सकती, वो हुकूमतें हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम उस ज़िंदा लहू की प्रोटेक्शन में हैं। मैं यीशु के नाम से इस घराने को तेरे हुजूर में रखता हूँ। वो खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद इनको अपने लहू की प्रोटेक्शन में रख, ताकि ये घराना तुझ में कायम रह सके। इन्हें बरकत देना मांगते हैं हम यीशु के नाम से, आमीन। सिस्टर रीता है, उनके ब्रदर के लिए दुआ करनी है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और अपनी फैमिली को जो है वो हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा इस बहन के ब्रदर को तेरे हुजूर में लाता हूँ जो नशे में धुन है, जो से नशे की लानत ने खुदा जकड़ा हुआ है। मैं उसके बदन से हर किस्म की नशे की गंदी स्पिरिट्स को, नशे की लानत को उसके जिस्म से, उसके दिमाग से, ब्लड से, हड्डियों से यीशु के नाम से दूर करता हूँ। और राइट नो, हर किस्म की नशे की लानत यीशु के नाम से छोड़ उस बदन को, यीशु के नाम से उस बदन को छोड़, क्योंकि वो बदन मसीह यीशु का खून खरीदा है। ओ खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के मार खाने से उसने शिफा पाई, तेरे बेटे यीशु के कोड़े खाने से उसने शिफा पाई। तूने सारी लानतें, सारी गंदगी हमारी अपने ऊपर ले ली। मैं खुदावंद उस भाई को तेरे हुजूर में रखता हूँ। सारा नशा यीशु के नाम से उसके बदन से जाए, यीशु के नाम से उसके घर से जाए, यीशु के नाम से उसकी जिंदगी से जाता रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर साबिर है, उन्होंने कहा है कि प्लीज सर मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दें, और ब्रदर प्रदीप हैं जो कि इंडिया से हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें। हम इन दोनों खानदानों के लिए खुदा के हुजूर में इनकी दरख्वास्तें रखेंगे। हालेलुया। खुदा इन दोनों घरानों को मैं तेरे हुजूर में रखता हूँ। खुदावंद इन घरानों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हर किस्म की तंग दस्ती, परेशानी, मुसीबत और दुख तकलीफ यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से जाए। इनके घरों से मैं शैतान के तमाम उन हिलों को, उन इरादों को, उन मंसूबों को यीशु के नाम से दूर करता हूँ। खुदावंद इन घरानों को संभाल, इन घरानों को बरकत देना, इन घरानों को अपनी नजात में कायम कर, ताकि ये घराने तेरे जलाल में बढ़े, तेरी कुदरत में बढ़े और तेरी वफादारी में कायम रहे। इन घरानों को महफूज रख, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसके साथ साथ हम ब्रदर बादल के लिए भी दुआ करें। जिनके पास औलाद नहीं है उनके लिए, सबके लिए दुआ करें। हालेलुया। अभी सुनते हैं या बाद में सुनेंगे। हम उन सब बहनों के लिए, उन सब भाइयों के लिए जिनकी रिक्वेस्ट्स आई हैं कि खुदावंद उन्हें औलाद दे। मेरे अजीज़ों, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, पेट का फल खुदावंद की तरफ से अजर है, और खुदावंद ही औलाद को देता है। हम सब इन बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए दरख्वास्त करेंगे कि खुदावंद इनके जुमों को, बंधनों को, रुकावटों को तोड़े और खुदावंद इन्हें सबको औलाद दे। हालेलुया, हालेलुया। ऐ जलाल के बादशाह यीशु नासरी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं इन सब बहनों को, इन सब भाइयों को तेरे हुजूर में लाता हूँ। मैं खुदावंद खुदा यीशु के नाम से इनके खुदावंद खुदा वो सारी लानतें, वो सारे कर्ज जो इनकी जिंदगियों में है, इनके बदनों में है, वो सब यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ।
फैमिली कर्सेस यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। वो सारी लानतें, सारे जुए बंधन यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू औलाद तेरी तरफ से है। अपना जलाली हाथ बढ़ाकर ओ खुदावंद बंद रहम खोल, क्योंकि तू बंद रहम खोलने की कुदरत रखता है। मैं यीशु के नाम से शैतान के मंसूबे, इनके बदनों से, इनकी जिंदगियों से, इनके घरों से, इनके खानदानों से यीशु के नाम से दूर करता हूं। और खुदावंद ये तेरे नाम में खुदावंद खुदा तेरी गवाही को देंगे। यीशु के नाम से खुदावंद इसी साल ये सब लोग तेरे नाम की गवाही देंगे। मैं खुदावंद यीशु के नाम से बंद रहम को खोलता हूं। यीशु के नाम से वो सारी मेडिकल की प्रॉब्लम इनके बदनों से यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद तू इनको औलाद दे। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद, तू मेरी दुआ को सुनता है और तूने मेरी दुआ को सुना है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने खुदावंद खुदा इस साल इन बहनों को, बेटियों को औलाद दे दी है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, मांगता हूं तेरे बेटे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वक्त कम होने की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा प्रे रिक्वेस्ट आ रही हैं जो कि जॉब के लिए हैं कि कहेंगे कि आप एक साथ ही सबके लिए प्रे करें। सबके लिए एक दफा ही प्रे करते हैं कि सबको खुदा अच्छी जॉब प्रोवाइड करे। हालेलुया। हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है। हम इन सब रिक्वेस्टों को खुदा के मज़बा पर रखेंगे, उस सलीब के नीचे रखेंगे। जो भी रिक्वेस्ट जिसकी की भी है, जॉब्स की है, वो घराने की है, औलाद की है, बाकी परेशानी मुसीबतें हैं, उन सब को खुदावंद के बेटे यीशु की सलीब के नीचे रखेंगे। हालेलुया। ऐ मेरे जलाली बादशाह, यीशु के नाम से मैं इन सब रिक्वेस्टों को तेरे हुजूर में रखता हूँ। पाक रूह खुदावंद राइट नो इनकी जिंदगियों में काम कर, इनके घरानों में काम कर, इनकी जिंदगियों में तेरी नजात आए। सारी लानतें, सारे कर्सेस, सारे शैतान के मंसूबे, इरादे इनकी जिंदगियों से, इनके बदनों से यीशु के नाम से जाएं। राइट नाउ शैतान यीशु के नाम से छोड़ इन जिंदगियों को। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद इनकी जिंदगियों में काम कर, इन्हें बरकत दे, इन्हें ब्लेस कर, ताकि तेरा शुक्र अदा करें। खुदावंद ये लोग तेरे नाम की गवाही देंगे, तेरे नाम का शुक्र अदा करेंगे। आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी तेरी हम दोस्ताइश करेगी, तुझे कदूस कहेगी, तुझे मुबारक कहेगी। खुदावंद इन सब को बरकत देना। और मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। खुदावंद का चेहरा हमेशा आप पर जलवागर फरमाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।